Good evening, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, Good afternoon.
गुड आफ्टरनून टू ऑल। सभी लोग सुन पा रहे हैं मुझे? गुड आफ्टरनून सर। Yes, sir. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. Still, there are some persons who are joining our classes. I think your previous classes जो है वो काफी लंबे समय तक चला, इसे समझ में आ रहा है मुझे। Very good afternoon, sir. ओके, मैं इसके पहले आगे जाऊं, थोड़ा सा एक अपडेट लेना चाहता हूं कि आप लोगों के यहाँ जो क्लासेस हैं बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के, वो चलने लगे हैं कि नहीं लगे? रेगुलर नहीं है सर। सर हो रही है क्लासेस सारी, बट रेगुलर थोड़ी सी नहीं है। कौन सी क्लासेस रेगुलर नहीं बताएं? सर बीएसटी की मोस्ट इरेगुलर है सर। सर बिजनेस सर एडमिनिस्ट्रेशन की सर। बीकॉम में बीएसटी एंड अकाउंट्स की इरेगुलर है। अकाउंट्स की सर कितने बीए में क्लासेस सोशियोलॉजी की क्लास बताएं? सर बीए में सोशियोलॉजी रेगुलर नहीं है। कितने क्लासेस हो गए एक बीए में? हमें एक एक सर इस हफ्ते में एक भी नहीं है। इस हफ्ते में सर एक है, मतलब कि 3 हफ्ते हो गए सर, एक क्लास हो रहे हैं बस। मतलब एक हफ्ते में एक क्लास हो रहे हैं? यस सर। सोशियोलॉजी के एक क्लास हो रहे हैं। और आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कितने क्लास हो चुके हैं अब तक से? सर टिल नाउ मैं बोल सकता हूँ सर मैक्सिमम 7 to 8 हुए होंगे सर, टिल नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, 7 to 8 क्लासेस बिजनेस No, sir, it was probably from 9 to 10 classes हुई हैं, not 7 यस to सर, 8 hours. अप्रोक्सीमेटली यस एवरेज वी कैन से सर। I will send to you a feedback form. Okay. यस And, सर। let me update through the status of the classes through feedback form, so that the necessary action whatever it would be possible for us may be taken, and let the administration should know that what is happening on. I am incumbent so to do. Okay. सर आप टीचमेंट का लिंक सेंड नहीं किए, टीचमेंट बोले थे। Yes, I was actually waiting for the roll number. Now the roll number has come through the administration, and the same has been notified to you. I think all have gone through the notifications, and you are Yes, sir. now aware of what is the roll number of your class. Okay. So Yes, sir. when you will, Yes, sir. when Yes, you sir. will try to join this teachment classes, then the system of the joining should be given there. I will notify you to how to, by what name you will join these classes. So how you have to make fill your name. Okay, there will be the systematic pattern, and I will give to you. But wait for time being. I am waiting for something else, which is also necessary for not for your part, but for our administrations. Okay. Now come to the points. In last classes, I dealt with the topic, the mental elements in tort. So, what sorts of the mental element there are, which is relevant in a law, and some of them has been dealt with. Okay? And now there is another questions which is also important for us, although it is a matter of the procedure, but since there is an intersection between the law of the tort and the procedural law, some accounts of that things is necessary to be dealt with at present moment, and that is the personal capacity in the law of the tort. And now you are of course very much curious of knowing that what is the personal capacity and with what references I am talking about
the personal capacity. So it is better to come to the presentation rather than discussion only. So let us see. Personal capacity. When I talk about the personal capacity, I mean capacity to sue and be sued in the law of the tort. Capacity to sue and be sued in tort. ओके, अब क्या मतलब है इसका? जब हम कहते हैं कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, इसका मतलब यह हुआ कि मैं अगर वादी हूं तो क्या मैं वाद ला सकता हूं, और अगर प्रतिवादी हूं मैं तो क्या मेरे ऊपर में वाद लाया जा सकता है? ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब यही होता है. बट दिस क्वेश्चंस इज नॉट सो मच सिंपल बिकॉज देयर आर टू मेनी अदर फैक्ट्स, वो भी साथ साथ में चलते हैं. इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन जो है, देखिए क्या है कि देयर इज ए जनरल रूल, एंड जनरल रूल इज दैट जो विक्टिम है टॉर्ट का वो कैपेबल है मुकदमा लाने का. जो एक्यूज्ड है, मतलब जिसने गलती किया है, उसके है ना, वो सक्षम व्यक्ति होगा जिसके ऊपर मुकदमा लाया जा सकता है. बट दिस इज अ जनरल रूल and it is subject to modification in respect of the certain categories of the person. Modification की जरूरत है. There is a need for modification because this general rule does not apply to all category of the person. Person to persons, this rule is different. Who is the person? To whom I refer person? This is still a very interesting question. Person may be different. In a different situation, let us see a convict. Convict is also a person. Ordinary person, individual. Just like I, just like you. Convict is also an individual person. Okay. A corporation is a person. A government is a person. A company is a person. Association of person is a person. Even a statute of God, just like a Bhagwan Sri Krishna, Bhagwan Ram is a person also in the eye of the law. Gurudwara is a place where Sikh community worship there. Gurudwara is itself a person. Masjid is a person, mosque. Guru Nanak Sahib, a Granth is a person. Receiver appointed by the court is a person. Sports association or union, trade union, they are also the person. Can you imagine? Can you imagine that in the eye of the law they are the persons? Yes, in the eye of the law they are the person, but with what references does matter. Because
In a different context, the rights and liability may differ. At present, we are talking about the tort. So let us see the personal capacity when an individual is convict. Convict. Who is convict? जिसको कि साबित कर दिया गया हो, जिसको कि अपराध घोषित कर दिया गया, मैंने ये घोषित कर दिया कि ये व्यक्ति अपराधी है. Not a simple accused. There is a difference between the accused and a convict. Convict, accused person, it means the trial is going on and it has yet not been proved that that person is a convicted. He is guilty of some crime. But once I say the convict, it means the law has convicted him, law has sentenced him. It has been proved that yes, this person has committed some crime. Okay. Now, question is, what is the personal capacity of the convict person? Then, listen very much carefully. A convict in India may sue for tort both in his person and property. What I am saying to you, अपराधी जो है he can sue for tort both his person and property. Something disturbances occurred. Let me resolve that things. He may sue for tort to his person and his property. क्या मतलब हुआ जब हम ये कहते हैं कि both his person and property? प्रॉपर्टी का मतलब उसकी संपत्ति और पर्सन का मतलब उसका बॉडी. A convict are not by mere reason of the conviction denied all the fundamental rights which they otherwise possess. अगर कोई कन्विक्ट व्यक्ति अगर कोई टॉर्ट करता है तो उसके ऊपर में मुकदमा लाया जा सकता है टू हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी. पर्सन का मतलब अभी आप एग्जाम्पल से जान जाएंगे कि उसको उसके संपत्ति के विरुद्ध, उसके शरीर के उसके विरुद्ध. Convict are not by mere reason of conviction denied all the fundamental right which they otherwise possess. अगर जेलर या दूसरा कोई अपराधी व्यक्ति या दूसरा कोई एक्यूज्ड पर्सन उस कन्विक्टेड पर्सन को अगर कोई डंडे से मार दिया तो उसने गलत किया ना. तो मारा क्या, उसके डंडे को उसके शरीर पे मारा, तो इसका पर्सन टू हिज पर्सन. तो इसलिए चूंकि वो कन्विक्टेड पर्सन है उसके ऊपर मुकदमा नहीं लाया जा सकता, ये गलत है. ठीक है. और बहुत पहले कभी ऐसा नियम हुआ करता था, एक प्रथा हुआ करती थी, अगर वो तो अपराधी पर्सन है, जो कोई आए मारो उसको. दो चार लोग मारते थे तो पांचवा भी लोग आकर के उस पर हाथ अपना सेक लेते थे. अरे वाह, वो तो अपराधी पर्सन, इसको मारेंगे तो क्या होगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा होगा, वो आपके विरुद्ध उसके शरीर पर हुए क्षति के प्रति
मुकदमा ला सकता है। ये तो शरीर की बात हुआ। अगर उसके पास कोई संपत्ति है, अगर उस संपत्ति के विरुद्ध अगर कुछ नुकसान होता है तो वो आपके खिलाफ अपने संपत्ति पे हुए नुकसान के विरुद्ध भी मुकदमा ला सकता है, टू हिज प्रॉपर्टी। तो कन्विक्ट are not by mere reason of the conviction denied all the fundamental right which they otherwise possess. The Constitution guaranteed the freedom like right to acquire, hold, dispose of property for the exercise of which the incarceration cannot be no impediment. तो ठीक है, जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वैसे उस कन्विक्ट पर्सन्स के भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। उस कानून के दायरे में रहते हुए उसके भी पास में किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का, उसको होल्ड करने का, उसको डिस्पोज करने का राइट्स होता है। और उस राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए उसका जेल से बाहर माने बंधन मुक्त होना ये आवश्यक चीज नहीं है। इट इज ए नॉट रिक्वायरमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? समझ पा रहे हैं आप लोग? कुछ रिएक्शन देंगे आप लोग? यस सर। यस सर। तो conviction of a person Yes, thus sir. does not draw any iron curtain between him and his right. किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि कन्विक्शन जो है ये पर्दा नहीं डाल देता उसके और उसके अधिकार के प्रयोग के बीच में पर्दा नहीं डाल सकता। एंड ही इज नॉट रिड्यूस टू ए नॉन पर्सन। और कन्विक्शन से ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो एक पर्सन से नॉन पर्सन हो जाए। ए कन्विक्ट कैन देयरफॉर sue in tort for vindication of his rights. अगर उसके राइट्स का विंडिक्ट किया जाता है, मतलब विंडिकेशन मतलब उल्लंघन किया जाता है, तो वो उस उल्लंघन के प्रति जो है मुकदमा ला सकता है। He can thus sue for battery. इस तरीके से वो बैटरी के लिए स्यू कर सकता है, मुकदमा कर। एसाल्ट कर सकता है, एसाल्ट के प्रति मुकदमा ला सकता है। If prison authority apply excessive force to enforce the prison discipline or apply the force in an improper purpose. ठीक है, प्रिजन अथॉरिटी जो है डिसिप्लिन को इन्फोर्स करने के प्रति अगर के लिए अगर जरूरत से ज्यादा फोर्स को ताकत माने इस्तेमाल करता है जो उसको नहीं करना चाहिए था, तो इस तरीके से हुए उसके ऊपर में जो हमला है या असाल्ट है उसके लिए वो ऐसे इम्प्रिजन करने वाले जो अथॉरिटी है उसके खिलाफ में वो मुकदमा ला सकता है। टॉर्टियस है ना, टॉर्ट का मुकदमा ला सकता है। श्रीमती केवलपति वर्सेस स्टेट ऑफ द यूपी ये केस है। ए कन्विक्ट वाज अटैच्ड बाय अनदर कन्विक्ट इन ए जेल एंड किल्ड ड्यू टू फेलियर ऑफ द जेल अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट हिम। एक कन्विक्ट था, अब यहां तो जेल अथॉरिटी भी नहीं है, लेकिन एक कन्विक्टेड पर्सन को के जहां पर वो था वहां पर किसी दूसरे कन्विक्टेड पर्सन को भी ला के रख दिया गया और उस दूसरे कन्विक्टेड पर्सन ने उसको किल कर दिया, उसको जान से मार दिया। और जो जेल अथॉरिटीज थी वो उसको प्रोटेक्ट करने में असक्षम रही। उसकी जान माल की रक्षा करना का जिम्मेदारी किसका है? जेल अथॉरिटीज का है। बट तो इन ए पिटीशन अंडर द सेक्शन 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द डिपेंडेंट ऑफ द डिसीज्ड, अब तो वो तो रहा नहीं, जब वो रहा नहीं तो उसका जो डिपेंडेंट है उस डिसीज्ड पर्सन का, डिसीज माने जो मर गया, तो जब उस पर उसको 1 लाख रुपया का कंपनसेशन जो है स्टेट के तरफ से मिला। क्यों? क्योंकि
उसके जो मूल अधिकार है लाइफ का, जो आर्टिकल 21 में दिया गया है, उसके उस मूल अधिकार का वायलेशन हुआ है। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि कन्विक्ट पर्सन जो है उसके भी वही राइट्स होते हैं जो एक आम इंडिविजुअल पर्सन का होता है। वो भी अपने विरुद्ध हुए टॉर्ट के प्रति जो है वो मुकदमा ला सकता है उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने उसके राइट्स का हनन किया है, और उसके ऊपर भी मुकदमा लाया जा सकता है। वो भी नहीं इस बात को लेकर नहीं बच सकता कि कह रहे सर मैं तो कन्विक्टेड पर्सन हूं। कोई बात नहीं, कन्विक्टेड हो तो ठीक है, एक और कन्विक्शन लो। अभी कितना छूटते थे, 7 साल ना, ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक और कन्विक्शन लो, 2 साल और, तीसरा भी गलती की हो, ओके कोई बात नहीं, 6 महीना और ले लो। वो खत्म हुआ तो फिर अब दूसरा शुरू हुआ, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा। अगर उसने डैमेज किया प्रॉपर्टी का तो कोई बात नहीं, वो कंपनसेशन करो, तुम्हारा नहीं है कोई बात नहीं है, तुम्हारे घर पे तुम्हारा अपना संपत्ति बाहर में तो है, वो खेत बेच करके कंपनसेशन दिया जाएगा। जो प्रॉपर्टी उसके पास में है उसकी नीलामी होगी। ये इस ग्राउंड को लेके बच नहीं सकता कि मैं एक कन्विक्टेड पर्सन हूं, मैं आजाद ही नहीं हूं जेल के बाहर। आपने ठीक है जेल के बाहर नहीं किया, जेल के अंदर तो किया। दूसरा, एलियन एनिमी। ये एलियन एनिमी की बात करते हैं हम लोग, तो पहले तो आप ये समझिए कि एलियन एनिमी कहते किसको हैं। When we talk about the alien enemy, this means a person of enemy nationality, or a person residing in or carrying on a business in enemy territory, whatever is his nationality. तो एलियन एनिमी का मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति है ना जो इनिमी नेशन का नागरिक है, या ऐसा व्यक्ति जो ऐसे टेरिटरी में रह रहा है कि वो टेरिटरी जो है वो इनिमी टेरिटरी है और वहीं पर रह रहा है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, वहां बिजनेस कर रहा है। अब नागरिकता फिर उससे में कोई मानी नहीं रखता। ठीक है, ए पर्सन ऑफ इनिमी नेशनलिटी और ए पर्सन रिसाइडिंग इन और कैरिंग ऑन बिजनेस इन इनिमी टेरिटरी, वट एवर इट्स नेशनलिटी। ठीक है, और एलियन enemies residing in India with permission of the central government may sue in any competent court to the same extent as they were the citizen of India. But alien enemy residing in India without such permission or residing in a foreign nation shall not sue in any such court. समझ लीजिए आप, एलियन एनिमी कौन है? जो दुश्मन देश का है या दुश्मन देश की टेरिटरी में रहता है या वहां वहीं पर व्यापार करता है, वहां पर रह करके या उससे वो व्यापार करता है, नागरिकता माने नहीं रखता। ठीक है, शत्रु देश का कोई व्यक्ति अगर भारत में रहता है तो भारत सरकार के परमिशन से वो जो सक्षम न्यायालय में अपने प्रति हुए टॉर्ट के लिए वो मुकदमा कर सकता है। उसके पास में वही कैपेसिटी होगी जैसे कि मानो कि एक भारत के नागरिक की जो कैपेसिटी होती है। लेकिन अगर उसके पास परमिशन नहीं है
He is not residing with permission, or he belongs to enemy nation, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी कोर्ट में मुकदमा नहीं ला सकता। हाँ सर इसका मतलब स्टेट उसको एज अ पर्सन रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है। कर रहा है ना, देखो, परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर उसने परमिशन लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तब लॉ जो है, कोर्ट जो है उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है कि वो कॉम्पिटेंट पर्सन है। अगर उसने परमिशन नहीं लिया हुआ है तब वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, वो कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है। ठीक है ना। एवरी पर्सन residing in a foreign country, the government of which at war with India and carrying on a business in that country without a license on that behalf granted by central government is deemed to be an alien enemy residing in a foreign country. देखिए होता क्या है कि जब नॉर्मल सिचुएशन होती है तब तो ठीक है, चलो यार, हम जब ये कहते हैं कि इनिमी 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 इनिमी, नॉर्मल कंडीशंस में सब कुछ ठीक ठाक होता है। एबनॉर्मल कंडीशंस होती है तब जब कोई देश में वार का सिचुएशन हो गया और डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है। अब मान लो हमारे देश में पाकिस्तान का कोई नागरिक है, आया यहां पर, उसके प्रति जो है कोई अगर वो परमिशन से आया है, अगर उसके खिलाफ कुछ वैसी बात हो गई है तो निश्चित रूप से वही विल बी, ही इज द कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है। या वो वहीं बैठा हुआ कोई व्यापार कर रहा है भारत के साथ में, और उसको अगर कोई नुकसान होता है किसी एक्ट स्टॉटी, तो ही इज द कॉम्पिटेंट पर्सन टू सू। बट सपोज करो द सिचुएशन विल बी चेंज्ड व्हेन वार इज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है। और तब वो वहां से कर रहा होता है तो फिर suit will not be accepted. एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात आती है हस्बैंड और वाइफ को लेकर के। ठीक है। शुरुआत के दिनों में जब अंग्रेजी लॉ में पति और पत्नी जो थे वो दोनों को एक ही व्यक्ति समझा जाता था। ठीक है। और इस तरीके से पत्नी के ऊपर में ये कोई राइट नहीं होता था कि वो हस्बैंड के ऊपर में मुकदमा लेके आए, और न ही हस्बैंड को यह राइट होता था कि पत्नी के ऊपर में कोई मुकदमा लेकर के आए। देयरफॉर वाइफ हैड, अच्छा वो इतना व्यापक था कि अगर हस्बैंड ने शादी होने के पहले अगर उसके खिलाफ में कोई टॉर्ट किया है तो शादी होने के बाद में भी पति पत्नी को एक समझा जाता था, और वाइफ को राइट ही नहीं होती थी कि अपने हस्बैंड के खिलाफ मुकदमा लेके आए उस एक्ट के लिए, उस रॉन्ग के लिए जो हस्बैंड ने शादी के पहले किया था। ये भी नहीं था। Even she could not sue or be sued unless her husband joined as a party to the suit. थर्ड पार्टी की बात कर लो अब, ये तो हस्बैंड वाइफ की बात हो गई। तो थर्ड पार्टी को भी अगर मुकदमा करना होता था, अगर उस टॉर्ट के लिए जो कि उसके पत्नी अकेले ने किया था, तब भी उस पत्नी अकेले के खिलाफ मुकदमा नहीं लाया जा सकता था जब तक ना कि उसमें हस्बैंड को जोड़ा जाए। शुरुआत के दिनों की बात कर रहा हूं मैं। कुछ समय पश्चात इंग्लैंड में ये दो लॉ आए क्रमशः। वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1882
और लॉ रिफॉर्म हस्बैंड एंड वाइफ एक्ट 1962। और इस एक्ट के आने के साथ में जो सिचुएशंस था वो फिर पूर्ण रूप से चेंज हो गया। एंड नाउ ए मैरिड वुमन इंग्लैंड में कैन स्यू हर हस्बैंड। पत्नियां अपने हस्बैंड के ऊपर में मुकदमा कर सकती हैं। शी कैन स्यू ए पर्सन विदाउट ज्वाइनिंग हर हस्बैंड एज ए पार्टी। वो किसी तीसरे व्यक्ति के खिलाफ भी मुकदमा कर सकती है अपने हस्बैंड को बिना जोड़े हुए, और कोई तीसरा व्यक्ति भी उसके पत्नी के खिलाफ मुकदमा कर सकता है उसके हस्बैंड को बिना जोड़े हुए। ठीक है। वर्तमान समय की बात करूं मैं भारत में, तो टुडे वाइफ एंड हस्बैंड्स आर रिगार्डेड एज ए डिफरेंट एंटिटीज। ये अलग अलग माने जाते हैं एंड देयरफॉर दे कैन स्यू ईच अदर इंडिपेंडेंटली। वो एक दूसरे के ऊपर में स्वतंत्र रूप से मुकदमा कर सकते हैं। ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, ये कंफ्यूज करने वाली बात है। भारत में पर्सनल कैपेसिटी बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ टू sue and be sue in tort is governed by their personal law। एक और बात भी है, अब हस्बैंड एंड वाइफ को लेकर के बात करें तो इनके जो पर्सनल लॉ है उसका भी एक महत्वपूर्ण रोल है। फिर चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, मुस्लिम हो। क्रिश्चियंस की बात करें तो याद कीजिए कि इंग्लैंड में 1872 में वो एक्ट पारित हुआ था, भारत में 1874 में पारित हुआ था, और इस एक्ट के पारित होने के बाद में वुमेन को, क्रिश्चियन वुमेन को वो सारी राइट्स मिल गई जो इक्विवेलेंट थी आपके 1872 इंग्लैंड की। ठीक है। भारत की कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो अगर आप देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे जो एनोमलीज थे, विच एनोमलीज वाज प्रेजेंट इन द कॉमन लॉ, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस एनोमलीज को दूर करने का बहुत हद तक प्रयास किया है। फिर चाहे वो एनोमलीज इनके मैरिटल स्टेटस को लेकर के हुए हो हैं या इनके पर्सनल कैपेसिटीज को लेकर के। आर्टिकल 14 जो है, इट embodies a guarantee against the arbitrariness and unreasonableness। आप लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 14, रूल ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन। ठीक है। अन्य बातों के, इन बातों के अलावा जो है, नीदर ऑफ देम कैन स्यू टू अदर फॉर असॉल्ट, नीदर ऑफ देम कैन स्यू टू अदर फॉर असॉल्ट, डिफेमेशंस एंड अदर पर्सनल लॉ। ये बातें जो है ये जंप करके आ गई हैं चोरी में। मैंने कहा था जस्ट इसके पहले आपको कि पति और पत्नी ये एक दूसरे के ऊपर में मुकदमा कर सकते हैं
कि नहीं कर सकते हैं, ये बहुत हद तक जो है उनके पर्सनल लॉ से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो मैंने आपको बताया कि हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, जैनिज लॉ है, ठीक है। तो ये बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं कि जहां पर उनके पर्सनल लॉ से हमें इसका उत्तर मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जैसे कि असॉल्ट, डिफेमेशंस और प्रॉपर्टी पर किए गए रॉन्ग्स, ठीक है, इस पे जो है दोनों एक दूसरे के प्रति जो है मुकदमा ला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एडॉप्शन का मामला है, ठीक है, मेंटेनेंस का मामला है, एलिमोनी का मामला है, जब आप लोग पर्सनल लॉ पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किसको यह अधिकार दिया गया है किसके प्रति अधिकार दिया गया है। अभी आप मोटा मोटी यही जानिए कि थर्ड पार्टी को लेकर के जब कोई थर्ड पार्टी के प्रति मुकदमा करना हो या थर्ड पार्टी इन लोगों को मुकदमा करना हो करेगा तो इनको एक होना जरूरी नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली थर्ड पार्टी किसी के ऊपर भी मुकदमा कर सकता है और ये भी स्वतंत्र रूप से थर्ड पार्टी के रूप में थर्ड पार्टी के खिलाफ मुकदमा ला सकते हैं। अब जब बात इन दोनों के बीच की आती है तो ये पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे मामले होते हैं जैसे असॉल्ट हुआ, डिफेमेशंस हुए, स्वतंत्र रहे दोनों एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा लाने के लिए। कारपोरेशंस क्या होता है? क्या कारपोरेशन जो है मुकदमा ला सकता है? क्या कारपोरेशन के ऊपर में मुकदमा लाया जा सकता है? First of all, you should understand that what is corporation. Corporation is an artificial person. Corporations क्या होता है? It is an artificial persons, but it is a person in the eye of the law. And it is an interesting fact that it is an artificial person. Although it is an artificial person, this means that law assume that this is a person. It is a legal entity, but this legal entity or its personality is a different from its member. पर्सन है लेकिन इस पर्सन मान ये जो कॉर्पोरेशन होते हैं ये कॉर्पोरेशन किसी न किसी मेंबर्स के सहारे मेंबर्स को लेकर, क्योंकि इसमें एक नहीं कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो ये अपने मेंबर्स से इनकी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। क्या अंतर होता है कॉर्पोरेशन में? ये बात आप लोग कंपनी लॉ जब पढ़ेंगे या पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे तब उसमें आपको ये बात समझ में आएगा। अभी आप मोटा मोटी ये जानिए कि जो आप कंपनियां देखते हैं या बिजनेस करते हैं ना, एक इंडिविजुअल भी बिजनेस करता है और
इंडिविजुअल बिजनेस करता है तो कितना कैपिटल उठा सकता है, जमा कर सकता है, उसकी जो क्षमता हुआ। लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट को में काम करने के लिए एक व्यक्ति के पैसे से काम नहीं चलता, बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत होती है। तो कई लोग मिलकर के एक एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है, एक फर्म बनाते हैं, पार्टनरशिप फर्म। तो वो पार्टनरशिप फर्म जो है वो फिर वो बिजनेस करती है, कई लोगों का कैपिटल इकट्ठा हो गया। तो कई होते हैं ना कि एक पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स, 3 पार्टनर, 4 पार्टनर। लेकिन पार्टनरशिप फर्म है, अभी भी वो कारपोरेशन नहीं है। कारपोरेशन कब होगा? जब वो कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत तो वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएगा, तब जाकर के वो कारपोरेशन हो जाएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल, व्हाट है ना, among the individual and the partnership firm and the company, ये बात का विषय है। अभी आप ये जानिए बस इतना कि कारपोरेशन एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आपने सुना होगा म्युनिसिपल कारपोरेशन, यस सर। ठीक है ना, डीडीए, वीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट कारपोरेशन ना, विकास प्राधिकरण अथॉरिटी, आपके यस छत्तीसगढ़ का भी है, फलाने का इंदौर का भी है, यस ठीक है सर। ना। तो ये कारपोरेशन है। कारपोरेशन का मतलब केवल वही कारपोरेशन नहीं होते हैं जो कि ये वीडीए फीडीए ये सब होते हैं ना। सरकार जो होती है इन इस तरीके की कारपोरेशंस को एक स्टैच्यूट बना करके उसको एग्जिस्टेंस में लेके आती है। ये बैंक्स जितने हो गए, दे आर कारपोरेशन, ठीक है। A corporation is an artificial person distinct from its member. Why I am saying that it is distinct from its member? Because a corporation के पास में ये भी अधिकार होता है कि वो अपने मेंबर के विरुद्ध जो है मुकदमा ला सकती है, और उसके मेंबर भी कॉर्पोरेशन के विरुद्ध मुकदमा ला सकती है। है ना? Being an artificial person, it always act through its agent. अब ये चूंकि आर्टिफिशियल पर्सन है तो आर्टिफिशियल पर्सन तो के पास भाई हाथ पैर होते नहीं है, तो लेकिन फिर भी इनको काम तो एक्टिविटीज तो करने पड़ेंगे। तो इनके हाथ पैर कौन होते हैं, कौन इनके लिए काम करता है? तो इनके लिए काम इसके एजेंट्स करते हैं, इसके सर्वेंट्स करते हैं। और इस तरीके से एज सच इट्स लायबिलिटी इज ऑलवेज ए वाइकेरियस फॉर द एक्ट डन बाय अदर पर्सन। तो जो लायबिलिटीज होती है कारपोरेशन की, इस तरीके से अक्सर वाइकेरियस होती है। वाइकेरियस में डायरेक्ट नहीं होती है, इनडायरेक्ट लायबिलिटीज होती है उस एक्ट के लिए जो एक्ट जो है दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। It was at one time doubtful whether a corporation could be sued for tort like malicious prosecution or deceit where the wrongful intention was a necessary element. एक समय था जब इसको लेकर के लोगों के दिमाग में शंका थी, क्या कॉर्पोरेशन के खिलाफ में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मुकदमा लाया जा सकता है, या उसके खिलाफ किसी धोखाधड़ी का मैटर लाया जा सकता है। क्योंकि ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मामला और ये धोखाधड़ी के मामले, ये ऐसे चीजें होती है जिसमें रॉन्गफुल इंटेंशन को साबित करना जरूरी होता है। तब कॉर्पोरेशन तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, ये रियल पर्सन नहीं है। इसके पास कहां से अपना मोटिव हो सकता है भाई? ये कैसे इंसान की तरह सोच सकता है? ये मेंटल एलिमेंट तो उसके पास होता ही नहीं है। इसको लेकर के शंका था एक समय में, लेकिन चीजें जो है अब स्पष्ट हो चुकी हैं और कई मैटर में ये ठहराया जा चुका है कोर्ट के द्वारा
कि इवन दो ए कारपोरेशन में नॉट हैव द रिक्विसाइट्स मेंटल एलिमेंट फॉर ए टॉर्ट रिक्वायरिंग द मैलिस, ऐसे टॉर्ट जिसमें दुर्भावना साबित करना जरूरी होते हैं, कारपोरेशन के पास में तब भी जब इस तरह का मैलिशियस मेंटल एलिमेंट नहीं होता है, तो क्या इट्स एजेंट आर कैपेबल ऑफ हैविंग द सेम। भाई उसके एजेंट तो होते हैं, एजेंट के पास तो मेंटल एलिमेंट होता है, उसके अंदर तो दुर्भावना हो सकती है। तो इसलिए उसके एजेंट के द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है, ऐसा कार्य जो कि रॉन्ग है, ठीक है, और वो एजेंट जो है वो कार्य जो होता है कब करता है, इन द कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, उसने अपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान वो काम किया हुआ करता है, तो कारपोरेशन जो है ही विल बी मेड लायबल फॉर देयर एक्ट लाइक ए ऑर्डिनरी एम्प्लॉयर, उसको भी लायबल बनाया जा सकता है जैसे कि एक सामान्य ऑर्डिनरी एम्प्लॉयर जो इंडिविजुअल नेचर का होता है उसके खिलाफ लाया जाता है। ए कारपोरेशन कुड देयरफॉर बी हेल्ड लायबल नॉट ओनली फॉर ट्रेसपास, libel, trover, conversion or negligence, but also for malicious prosecutions or fraudulent misrepresentation. अलग अलग केसेस में अब है ना, तो कारपोरेशन को ठहराया जा चुका है लायबल के लिए, लायबल ठहराया जा चुका है इन सब मामलों में, ट्रेसपास के मामलों में, लाइबल के मामले में, ट्रोवर के मामले में, कन्वर्जन के मामले में, नेग्लिजेंस के मामले में, साथ ही साथ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के भी मामले में और फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन के भी मामले में कारपोरेशंस को लायबल ठहराया जा चुका है। There is no doubt that a corporation is always liable if the scope of the authority or employment of its agents or servant acting on its behalf was within the power intra vires of the corporations. तो ये अब शंका का विषय ही नहीं रह गया है ना। और अब जो कारपोरेशन है वो हमेशा सदैव से उस एक्ट के प्रति लायबल होगा जो एक्ट जो है इफ द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी और एम्प्लॉयमेंट ऑफ इट्स एजेंट और सर्वेंट्स एक्टिंग ऑन इट्स बिहाफ आर विद इन द पावर ऑफ द कारपोरेशन। क्या मतलब है? ऐसा है कि कोई भी जब कारपोरेशन बनता है तो वो उसकी जो ड्राफ्ट बनती है तो उसके ड्राफ्ट में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है और एक और चीज होती है मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल होती है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होती है वो बताती है कि कंपनी का बिजनेस का नेचर, स्कोप क्या है, वो कंपनी किस पर्पज से खोली गई है, कंपनी कहे या कहां पर आपके संदर्भ में कारपोरेशन कहिए, एक ही बात है। उसका स्कोप क्या है, वो किस किस बिजनेस एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व होगी, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसके मेंबर्स के स्कोप दिए हुए हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसा मेंबर्स का ऐसा कृत्य जो कि उस कारपोरेशन के दायरे में आता हो, उसके कृत्य के दायरे में आता हो, तो ये इंट्रा वायर्स हुआ। और इंट्रा वायर्स में रह करके अगर कोई एजेंट जो है कारपोरेशन का अगर कोई टॉर्ट करता है तो वो तो रिस्पॉन्सिबल होगा ही होगा, ये तो 100% सत्य बात है। प्रश्न ये है कि अगर उसका अथॉरिटी कोई अल्ट्रा वायर टॉर्ट करता है तो क्या कंपनी को या कारपोरेशन को लायबल ठहराया जा सकता है? यानी कि उसका जो कर्मचारी है, जो एजेंट है, वो एक ऐसा कार्य करता है जो कि कंपनी के स्कोप में या उसके ऑब्जेक्टिव के दायरे में नहीं आता। अल्ट्रा वायर मीन्स नॉट विद इन द स्टैट्यूटरी और लीगल लिमिट्स ऑफ द कॉर्पोरेशन पावर। तब क्या स्थिति होगी? तो जो करेक्ट पोजीशंस है, दिस वाज एक्सप्लेन
in the case of the Campbell versus the Paddington corporations. ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है। इस केस में इसके ये सवाल का जवाब जो है ढूंढा गया, और जहां पर ये ठहराया गया, ये एस्टेब्लिश किया कि फॉर द पर्पज ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन फॉर टॉर्ट्स there is no need to draw the distinctions between the intra-vires and ultra-vires tort, because a corporation is as such liable to ultra-vires act done by its representative as for intra-vires act. अगर उसके एजेंट अगर ऐसा कोई कार्य करते हैं जो कि अल्ट्रावायर्स है, अल्ट्रावायर्स टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द या अल्ट्रावायर्स टू द पावर ऑफ द कॉर्पोरेशंस, ठीक है, तो भी कंपनी को टॉर्ट के लिए टॉर्टियस जो टॉर्ट के लिए लायबल ठहराया जा सकता है, और उतने ही एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट में आपको उनके एजेंट द्वारा किए गए इंट्रावायर्स एक्ट के लिए होता है। इस केस में हुआ क्या था कि डिफेंडेंट क्या था? डिफेंडेंट था एक लोकल गवर्नमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। आप इसको तुलना कर सकते हैं कि आपके अपने क्षेत्र का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, वो डिस्ट्रिक्ट का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो डिफेंडेंट जो था, माने ये जो पैडिंगटन कॉर्पोरेशन क्या था, एक तरीके का आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, कॉर्पोरेशन था। डिफेंडेंट जो था, in persuasions of a resolution of their council, erected a stand on highway to enable the member of the council and their friends to view the funeral procession of the Edward XI. एडवर्ड 7 जो थे, एक किंग थे इंग्लैंड के, वो मर गए, तो उनका फ्यूनरल जो है, प्रोसेशन जो है, मार्च जो जिसको आप कहते हैं, वो गुजरना था, वो होना था। तो उसके फ्यूनरल प्रोसेशन को देखने के लिए तो ये जो पैडिंगटन कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय थे, ये सोच रहे थे कि इनके एम्प्लॉयज और उनके फ्रेंड्स जो है उस प्रोसेशन को अच्छे से देख सकें। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि हाईवे में एक स्टैंड बना दिया ताकि उस पर बैठ करके उस प्रोसेशन को वो देख सके, माने एक तरीके का इरेक्शंस ऑन द रोड, ठीक है। अब वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही है भाई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम ही होता है कि रोड बनाना, फलाने गली फली सब ठीक ठाक करना। एडवर्ड 7 मर गए तो उसके प्रोसेशन को देखने के लिए ये कॉर्पोरेशन वालों ने जो है वो अपने परिवार और अपने मित्रों को जो है वो देख सके, उसके के लिए इस तरह का इरेक्शन खड़ा कर लिया। तो जो कंस्ट्रक्शन था ऑफ द सच स्ट्रक्चर ऑन ए हाईवे वाज ए पब्लिक न्यूसेंस। The structure also obstructed the views from the window of the plaintiff house, as a result of which she was prevented from making a profitable contract by charging for seats in her house for viewing the said procession. And therefore she filed a suit to claim the compensation, contending that the construction of a such structure also amounted to tort of the private nuisance, as the same has interfered with the enjoyment and use of her house, resulting in special damage to her. नहीं समझे आपने? वो जो इरेक्शन था वास्तव में वो एक पब्लिक न्यूसेंस हो गया, क्योंकि पब्लिक रोड था। पब्लिक रोड पे उसने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो है उस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा किया था, तो वो अपने आप में था ही पब्लिक न्यूसेंस। लेकिन इस मैटर में एक औरत ने जो है वो भी मुकदमा ठोक दी उसके ऊपर में। वो उसका मानना था कि ये पब्लिक न्यूसेंस हो चाहे ना हो, ये प्राइवेट न्यूसेंस है। क्यों है? क्योंकि इसने, मेरा घर है और
मैं घर के अपने बालकनी से उस प्रोसेशन को मैं देख सकती थी, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी किया था। कुछ लोगों को हमने अपने यहाँ बैठा करके उनको उनसे जो एग्रीमेंट भी किया था कि वो हमारे यहाँ हमारे बालकनी में से बैठ करके वो उसके नजारे को वो देख सकते थे। हमने उनसे चार्ज भी, मैंने अच्छे खासे एक एग्रीमेंट भी हुए थे, तो हमको जो प्रॉफिट होने वाले थे उस एग्रीमेंट के जरिए वो सफल नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि उसकी वो प्रोसेशन और बालकोनी के बीच में जो व्यूज है उसके बीच में ये इरेक्शन हो गया, जिसके कारण से ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया। देयरफॉर ये जो मेरा एंजॉयमेंट है, मैंने इसके जो न्यूसेंस है, इस न्यूसेंस के कारण जो है मेरा जो एंजॉयमेंट करने का राइट्स है वो डैमेज हो गया, और इस तरीके से हमको एक नुकसान उठाना पड़ा। तो ये डिफेंड करने का प्रयास किया गया कारपोरेशंस के द्वारा कि इट कुड नॉट बी मेड लायबल, कि कारपोरेशंस को लायबल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो एक्ट था वो अल्ट्रा वायर्स था। मतलब कि कारपोरेशन के पास में पावर ही नहीं था कि इस तरह के स्ट्रक्चर को वो क्रिएट करे। जो पब्लिक न्यूसेंस हो। दूसरा, कारपोरेशन के पास में ये पावर ही नहीं था कि वो पावर जो है मैंने वो अथोराइज करे अपने मैंने एजेंटों को, अपने एम्प्लॉय को, कि इस तरह का वो न्यूसेंस क्रिएट करे, और वास्तव में नहीं था। किसी तरीके का कोई इसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा था ही नहीं जहां पर कारपोरेशन कहती हो कि उसके एम्प्लॉय जो है वो एम्पावर होंगे कि कहीं पर भी सड़क पर जो है वो कोई इलेक्शन जो है वो खड़ा कर सकते हैं। था ही नहीं। लेकिन है ना, लेकिन उसके इस दलील को खारिज कर दिया गया और कोर्ट ने माना कि ये जो है नहीं चलेगा। द कोर्ट रिजेक्टेड हिज प्ली एंड हेल्ड दैट कारपोरेशन वाज लायबल। कारपोरेशन जो है लायबल है इसके लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम बात कर रहे हैं कारपोरेशंस के लिए, तो क्या कारपोरेशन जो है उसकी पर्सनल कैपेसिटी क्या है, क्या उसके ऊपर मुकदमा लाया सकता है, क्या कारपोरेशन भी मुकदमा ला सकता है? तो उसका जवाब आपने पा लिया कि यस, कारपोरेशन इज एज मच ए पर्सन एज ए इंडिविजुअल इज। ठीक है, यस। आप आज के डेट में जितने भी जितना हमें बोलना था बोल लिया हूं। ठीक है, अब बाकी बातें जो हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट देयर आर सम क्यूरीज ऑन योर पार्ट एंड आई एम ऑब्जर्विंग दैट सम हैज रेज्ड देयर हैंड, सो लेट अस टॉक विथ हिम। यस, व्हाट आर द क्वेश्चंस? पूछिए। किसी को पूछना था ना, आप लोगों ने रेज हैंड किए हुए थे। नहीं सर। हाँ सर, जैसे कि आपने बताया कि पर्सनल कैपेसिटी में मतलब एक कन्विक्ट को भी उसके फंडामेंटल राइट्स होते हैं कुछ करके। और उसके राइट्स होते हैं। जी सर। तो अगर सर एक टेररिस्ट है तो उसको क्या राइट है कि अपना जो भी है उसको लेके वो कोर्ट जा सके? क्या क्या चीज का राइट्स बताओ? सर कि मतलब किसी भी मतलब उसके प्रॉपर्टी नहीं तो वो उसका पर्सन वो बॉडी को डिफेंड करने के लिए कोर्ट में जा सके? अरे भाई, टेररिस्ट है तो टेररिस्ट क्या वो डिक्लेयर कर दिया गया कि अभी उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है? सर मुकदमा चल रहा है। तो वो ऑर्डिनरी पर्सन है। ठीक है,
और इवन अगर कन्विक्टेड पर्सन है तो मैंने तो कह दिया हूं आपको कि कन्विक्टेड पर्सन के भी अपने राइट्स होते हैं। ठीक है, एक अपराधी व्यक्ति, उसको फांसी की सजा सुनाई गई, उसको फांसी होने आज से 11 दिन बाद, यस सर, और उसके मरने से 3 दिन, उसको फांसी होने से 3 दिन पहले किसी तीसरे व्यक्ति ने आकर के उसको गोली मार दिया, या उसके ऊपर में 5-6 पड़ाके उसको मार दिए गए, मार दिया उसको। अगर गोली मारा मर गया तो उसके ऊपर तो मर्डर का चार्ज लगेगा। अब ये डिफेंस नहीं होगा उसके व्यक्ति के पास अगर सर वो तो 11 दिन बाद, तो मैंने 11 तारीख को मतलब खुद ही उसकी फांसी होनी थी। ठीक है, और जो अगर वो हमला किया है उसके ऊपर में, तो वो सिविल लॉ के प्रति भी जिम्मेदार होगा, क्रिमिनल लॉ के भी प्रति भी जिम्मेदार होगा। हमला दोनों में आता है, वो एक क्रिमिनल लॉ भी है और एक सिविल लॉ भी है। सिविल लॉ में आप टॉर्ट में जाएंगे उसको, और क्रिमिनल लॉ में आप आईपीसी का धारा जो है उसको इन्फोर्स कराएंगे उसको। ठीक है, और कुछ? ठीक है, तो थैंक यू, बने रहिए, लेकिन अभी आप जब तक मैं अटेंडेंस ना काउंट कर लूं।